Morning everyone. Morning. So today we are going to start the new chapter and the name of the chapter is Permutation, Combination and Binomial Expansion. Okay, so this chapter is basically divided into three parts. First we'll learn about permutation, then we'll learn about combination, then we'll learn few sums where there will be a combination of both permutation and combination, and finally the part is binomial expansion. Quite a lengthy chapter. We have to divide it into parts. First we'll start with permutation. What is permutation? Now before starting this chapter, I would like to tell you that you have to revise this chapter very well. Keep on practicing the sums because this chapter will be helpful for you all in the 12th standard. So the basic version of the same chapter will be carried forward in the 12th standard. So that you don't face difficulty over there, you have to start practicing it very well in the 11th standard itself. Is it clear? Yes. Now we are starting with permutation. As I told you, three parts. We'll first discuss what is permutation. Now, before starting the explanation, I'll give you a small example. Let's understand. Now, here is a bench. Now this bench, how many students can sit on this bench? Maximum 3 students can sit on the bench, right? Okay. Now I am calling 3 students and I am telling them to sit on this bench. There is a bench. How many students can sit? 1, 2 and 3 students can sit on this bench. Okay. I am calling 3 students and I am telling them to sit on the bench. Now suppose I am name it as A1, A2 and A3. ठीक है, 3 दोस्त हैं, उनको मैंने बुलाया, उनको बेंच पे बिठाना है मुझे. कौन है वो? A1, A2, A3 सपोज कर लो. ओके. नाउ these 3 students I have to make them sit on the bench. अब हो सकता है कि ये जो फर्स्ट वाली प्लेस है वहां पे A1 भी बैठ सकता है. Yes, anyone can sit on the first side, right? A1 can also sit, A2 can also sit, A3 can also sit. Similarly, in the middle area, anyone can sit. कोई भी बैठ सकता है ना? ऐसा कोई रूल है? कोई कंडीशन है? नहीं, कोई भी बैठ सकता है. वैसे A1 की जगह फर्स्ट वाले जगह पे भी कोई बैठ सकता है, सेकंड वाले पे भी कोई भी बैठ सकता है. A1 भी, A2 भी, A3 भी, वैसे भी थर्ड वाले में भी. तो what I did basically, I called 3 students and I arranged them on one bench. एक bench थी जिस पे 3 लोग बैठ सकते थे and I have called 3 students and have arranged them on the bench. मैंने बेसिकली क्या किया? बच्चों को क्या किया? अरेंज किया, है ना? बिठाया ना, अरेंज किया ना. जहां पे भी अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन आए, whenever the thing comes about arranging something, ठीक है? Whenever a question is coming where you have to arrange something, whenever it is arrangement, we are doing permutation. Understanding? Whenever there is a case, see, you have to understand this very well because later on you don't get confused with what is permutation and what is combination. जब भी ये word arrangement आए ना कि किसी चीज को arrange करना है तो वो हमेशा permutation से ही होगा. ठीक है? Now you went to a cafe. एक मस्त नया सा कैफे खुला था. You went to that cafe and you had only 100 rupees with you. 100 था. वहां पे 2 पिज्जा थे, 2 अलग अलग टाइप के पिज्जा. सपोज एक समझ लो मार्गरेटा और एक खाने का मन कर गया वेजिटेबल वाला. ठीक है, 2 पिज्जा थे और एक था मॉकटेल था कोई. ठीक है, सबके प्राइस कितने थे? इसका भी 100 था, इसका भी 100 था, इसका भी 100 था. ठीक है, how much money you were having with you? You were having only 100 with you. You went to a cafe and after going there you were having only 100 rupees. क्या आपने किसी एक पिज्जा को या फिर मॉकटेल को as per your choice you have selected anything, right? क्या किया आपने? सिलेक्ट किया.
अंडरस्टैंडिंग? एंड व्हेनेवर सिलेक्शन वाला चीज आए ना, व्हेनेवर सिलेक्शन वाला चीज आए तो वी आर मेकिंग अ कॉम्बिनेशन। अंडरस्टैंडिंग? ये बेसिक डिफरेंस सिर्फ मैं आपको बता दूं, उसके बाद हम लोग कैसे पार्ट में डिवाइड करेंगे चैप्टर को। पहले सिर्फ परम्यूटेशन करेंगे, उसके बाद फिर सिर्फ कॉम्बिनेशन करेंगे, फिर ऐसे सम्स करेंगे जहां पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दोनों आएगा, और लास्ट बाइनोमियल एक्सपेंशन का कोई रिलेशन ही नहीं है तो वो आराम से अलग से करेंगे। अंडरस्टैंडिंग? जब भी चीजों को अरेंज करने की बात आए, है ना, एक सर्कल बनाना है मुझे बच्चों को खिलाने के लिए, मैंने प्लेग्राउंड पर बच्चों को लेके गई, आई हैव 7 स्टूडेंट्स एंड आई हैव टू मेक देम अरेंज इन अ सर्कल फॉर मेकिंग देम प्ले सम गेम, एंड व्हेन आई एम अरेंजिंग देम इन अ सर्कल, अरेंजमेंट वाला चीज आया ना, तो व्हेनेवर इट इज अरेंजमेंट वी हैव टू डू परम्यूटेशन। Arrangement is permutation and selection is combination. सिर्फ ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ जाओ कि अरेंजमेंट आएगा तो हमें क्या करना है, परम्यूटेशन करना है। अब सिर्फ परम्यूटेशन पे जाते हैं, ठीक है? समझ में तो आ गया ना, अरेंजमेंट करना है परम्यूटेशन में। अब देखो, परम्यूटेशन, वी डिनोट परम्यूटेशन इज डिनोटेड बाय कैपिटल P. It is denoted by capital P. ठीक है? अब एक बेंच है, ये सेम बेंच वाला एग्जाम्पल लेते हैं। एक बेंच है जहां पे 1, 2, 3, 4 जन आराम से बैठ सकते हैं। 4 जन आराम से बैठ सकते हैं, और मैंने 2 बच्चों को बुलाया। क्या मैं 2 बच्चों को उस बेंच पे अरेंज कर सकती हूं? आई वॉन्ट द आंसर yes और no. Yes और no. बेंच है जिसपे 4 बैठ सकते हैं, आई हैव कॉल ओनली 2 स्टूडेंट्स एंड आई वांट टू अरेंज देम ऑन द बेंच। कैन आई डू दिस? यस और नो? यस ऑफ कोर्स। व्हाई कैन आई डू? बिकॉज देयर इज इनफ स्पेस, 4 जन बैठ सकते हैं, तो अगर इसको 2 ही जन को बिठाना तो क्यों नहीं बिठा सकते? बिठा सकते हैं ना। ये सिंपली व्हाट इट इज सेइंग कि हमारा जो P है वो लिखा कैसे जाता है, यू नो, इट इज रिटन लाइक NP R. दिस इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और उसमें से अरेंज कितनों का करना है ये है। तो अगर मेरे पास 4 जगह है तो उसमें से मैं 2 जन को तो आराम से अरेंज कर सकती हूँ। यस और नो? यस। तो मेरा जो N है इस केस में कितना है, और मुझे अरेंज कितनों को करना है, तो मैं कितने वेज में करूंगी? यू विल ऑलवेज आंसर दिस इन वेज। ओके, तो आई विल अरेंज इन 4P2 वेज। 4 जगह थी, सिर्फ 2 को ही अरेंज करना था, तो कितने वेज में होगा? 4P2 वेज। लिखना कैसे? ऊपर, थोड़ा ऊपर से लिखोगे 4, फिर लिखोगे P और नीचे से लिखोगे 2। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग परम्यूटेशन। ठीक है? 4P2 वेज। फर्स्ट एग्जाम्पल जो मैंने दिया बेंच में, जिसमें 3 बच्चे थे और 3 सीट थी, वो कितने में अरेंज होगा? बस एक सिंपल सा आंसर वेज में बता दो मेरे को। First example, I have told you there was a bench where there was 3 seats, right? And there were only 3 students to be arranged in this seat. So in how many ways it can be done? Very good. 3P3 ways. 3 seats, 3 लोग, तो कितने वेज में? 3P3 ways. समझ में आया? अब मुझे बताओ, कंटिन्यूइंग विद द सेम एग्जाम्पल, बेंच वाला ही, अगर इस बेंच पे, ये लाइन थोड़ी छोटी दिख रही है ना आपको, इस बेंच पे 2 ही जन की सीट है, और मैंने 4 को बुलाया और मैंने बोला उनको बैठ जाओ इधर। अब बोलो, विल दिस बी पॉसिबल? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी पॉसिबल? 2P4 ways? Yes? First of all, it is not possible only. वो तो लॉजिक लगाओ कि अगर जगह 2 ही बच्चों की है और मैंने 4 बच्चों को बुला दिया, वो लोग बोलेंगे मैम इस पर कैसे बैठेंगे, ये तो 2 ही जन बैठ सकते हैं, हम 4 जन कैसे एडजस्ट हो? समझ में आ रहा है? माने अगर 2 की जगह है, और 2 की जगह कितनों की है? 2 की है, और मैंने बुलाया कितनों को? 4। मानी 2P4 पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है।
समझ में आया? इन शॉर्ट में आपको समझाना ये चाह रही हूं कि n हमेशा हमेशा बड़ा होगा r से। n जो होगा वो r से बड़ा होगा। 7p6 इज इट पॉसिबल? यस। क्यों? 7 बड़ा है ना और 6 छोटा है ना, पॉसिबल है। 1000p95 पॉसिबल? यस। व्हाई? 1000 बड़ा है ना। सीरियसली एकदम सिंपल सी चीजें समझना चाह रहे हो कि भाई जो n है वो बड़ा होगा, r जो है वो छोटा होगा। बहुत बार बच्चे ये चीज कर लेते हैं कि भाई 2p4, पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपके पास है ही नहीं स्पेस। हाउ विल यू अरेंज इट? माइंड में फिक्स रखना है। परम्यूटेशन मानी क्या करना है हमें? अरेंजमेंट करना है। अरेंजमेंट कितने वेज में करना है? NPR वेज में करना है। NPR में n हमेशा r से बड़ा होगा। इज इट क्लियर? चलो, अगर हमें यह समझ में आ गया कि NPR में n बड़ा होगा, NPR वेज में लिखना होता है, पर ये NPR सॉल्व कैसे होता है, दैट वी विल लर्न। ओके, मैंने क्या बोला? परम्यूटेशन। हाउ वी विल राइट परम्यूटेशन? वी राइट इट एज NPR। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू सॉल्व दिस NPR। ओके, सिंपल। टू NPR का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। नाउ अब आप लोग क्या बोलोगे? मैम ये क्या नई चीज आ गई, फैक्टोरियल, राइट? तो ये जो है उसको हम लोग बोलते हैं, what do we call this as? Factorial. This is factorial. This the exclamation mark that you are doing, and this is factorial. फैक्टोरियल का मीनिंग ये होता है कि अगर मैं बोलूं 5 फैक्टोरियल तो आपको 5 से पीछे कदम रखना है जब तक आपको 1 ना दिखे। मानी इफ आई से 5 फैक्टोरियल, यू हैव टू से 4 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. You have to go backwards till 1. If I say 9 factorial, you have to go backwards 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. मानी जो भी फैक्टोरियल हो उससे आपको पीछे जाना है जब तक आपको 1 ना मिले। समझ में आ रहा है? मीन सिंपल वे, इफ आई से 2 फैक्टोरियल इट इज 2 into 1. If I say 5 factorial, it is 5 into 4 into 3 into 2 into 1. If I say 7 factorial, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. फैक्टोरियल का मीनिंग समझ में आ गया? फैक्टोरियल समझ में आ गया? फैक्टोरियल जहां पे भी आएगा वो साइन कहां तक पीछे जाएगा? तो 1 तक। फिर वो 100 हो कि 1000 हो, कुछ भी हो, लेकिन मल्टीप्लाई पीछे से करते जाना है जब तक आपको 1 ना मिल जाए। 1 आपका घर है, ठीक है, आपको उधर तक जाना है। Are you understanding? Okay. In my formula, NPR is n factorial divided by n minus r factorial. मानी अब हमको n factorial तो सॉल्व करना आ गया, पर n minus r भी करना है डिवाइड करके, right? तो how do we do this? We'll see one example. You will clearly be able to understand. अगर मैं लिखूं यहाँ पे 7p5, तो ये 7 क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल n, and what is this 5? r. समझ में आ रहा है ना? चलो, if I want to carry this formula over here, what I will write over here? 7 factorial divided by, समझ में आया? 7 factorial divided by 7 minus 5 factorial. Now, how to solve this I will teach you. This is 7 factorial. 7 minus 5 factorial, that is 2 factorial. अगर सिर्फ 7 factorial होता तो you could have gone back side till where? Till 1. अब जब नीचे भी कोई नंबर हो ना, ये तो बहुत इजी है, लेकिन विल टेक फ्यू एग्जांपल नेक्स्ट ऑल्सो। व्हाट यू हैव टू डू इज, नीचे भी डिवाइड में जब कोई नंबर हो ना, तो आपको पीछे कदम कितना रखना पता है? जब तक वो नीचे वाला नंबर ना दिख जाए, जब तक वो नीचे वाला नंबर आपको ना दिख जाए उतने ही कदम जाओ, उससे ज्यादा मत जाओ। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई।
See, here it is what? 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. और ये 2 फैक्टोरियल माने क्या? 2 into 1. तो ये 2 into 1, ये 2 into 1 तो कट ही जाएगा. हमारा आंसर क्या आएगा? मल्टीप्लाई 7 into 6 into 5 into 4 into 3. क्या आंसर आ रहा है हमारा? 5040. समझ में आ रहा है? अब ये हमने क्या किया? हमने 1 तक पीछे गए, बट इसके जगह पे अगर ऐसा होता 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, तो मैंने आपको क्या सिखाया? हमें पीछे कितना कदम रखना है? जब तक यू डोंट सी द नीचे वाला नंबर आपको नहीं दिखे तब तक आपको पीछे जाना है. नाउ सी एवरीवन, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर. इफ we have something on the downside. अभी यहाँ पे 5 फैक्टोरियल है, तो what you have to do? You have to go backward till you don't see the number. 7 into 6 into, अब मैं 5 into 4 into 3 into 2 into 1 लिखूं या फिर मैं लिखूं 5 फैक्टोरियल. It is one and the same. Understanding? Instead of writing 5 into 4 into 3 into 2 into 1, what I will do? I will write 5 factorial. Now, what you will do? 7 into 6 into 5 into 4 into 3. 7 into 6 into 5 into 4 into 3. आपका आंसर आता है 2520. मानी यहाँ पे आपको स्टॉप कर जाना है, आपका आंसर हो गया. ठीक है, सिंपल है, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर देना है. वॉट एवर यू गेट द आंसर इज डन. ये सिंपल था. But if in the case, if it is given 7 factorial divide by 5 factorial, if it is given 7 by 5, what I am telling the rule is आपको पीछे इतना ही कदम जाना जब तक आपको नीचे वाला नंबर ना दिख जाए. तो what you will do? 7 into 6 into 5 factorial divided by 5 factorial. Now see, 5 into 4 into 3 into 2 1 ऊपर भी लिखे जैसे हमने यहाँ किया था, और नीचे भी लिखे 5 into 4 into 3 into 2 into 1. तो वो ऊपर नीचे वाला कट ही होने वाला ना, उसको लिखो. इससे बेटर व्हाट वी कैन राइट 5 फैक्टोरियल. सो रूल क्या है? हम लोग क्या करेंगे? नीचे वाला नंबर दिख गया ना तो बस वहां फैक्टोरियल डाल दो, क्योंकि नीचे ऊपर वाला तो कट होने ही वाला है. समझ में आ रहा है? Here what we did, as we did 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, वहां पे नीचे गया 2 into 1 2 into 1 2 into 1 तो कट गया, ऊपर नीचे दोनों है तो कट गया. वैसे यहाँ पे भी तो कट ही जाएगा ना. 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 1 और 5 into 4 into 3 into 2 into 1, तो 5 से लेके जो भी नंबर है वो सारे कट जाने वाले हैं. तो वो सारे लिखो. उससे अच्छा हम क्या लिखेंगे? 5 फैक्टोरियल. ऊपर भी 5 फैक्टोरियल, नीचे भी 5 फैक्टोरियल, ऊपर नीचे वाले. तो हमारा आंसर क्या आएगा? 7 into 6 42. अंडरस्टैंडिंग? तो दिस इज अ डायरेक्ट आंसर. हियर यू गॉट द आंसर एज 42. अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? अंडरस्टैंडिंग हाउ टू सॉल्व? What is the rule? NPR solve कैसे करना है? NPR is n factorial divided by n minus r factorial. Can n be smaller than r? It cannot be. N is always greater than r. n बड़ा होना चाहिए हमेशा. अगर n बड़ा नहीं है तो कुछ तो हमने गड़बड़ किया है. Understanding? Simple है. You can solve it. ये जो है साइन, वो किसकी साइन है? फैक्टोरियल. क्या है? फैक्टोरियल. फैक्टोरियल बोलता क्या है? कहाँ जाना है हमें? कहाँ तक? 1 कौन है? वेरी गुड. चलो अब कुछ डिराइव्ड है ऑलरेडी, कुछ परम्यूटेशन ऑलरेडी डिराइव्ड है. विल लर्न दोस परम्यूटेशंस. फर्स्ट ऑफ ऑल NP0 आप हमेशा ट्राई करो. कोई भी नंबर लेके NP0 ट्राई करो. अगर n की कोई भी वैल्यू है, 5 है, 10 है, 100 है, 1000 है, कुछ भी है, लेकिन उसके साथ अगर r 0 है, अंडरस्टैंडिंग? प्लीज कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर. इफ n, the value of n is given to you, but r is what? The answer will always be 1. Shall we check it? Yes, let's see. 9p0. What will be there? 9 factorial divided by 9 minus 0 factorial. ठीक है? 9 minus 0 means what? 9 ना? तो 9 factorial divided by 9 factorial, that will be? Answer will be 1? ये तो छोटा सा नंबर था. Let's try 1000. Yes? 1000 P0.
तो क्या आएगा 1000 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1000 माइनस 0। किसी भी नंबर में से 0 हटाएंगे तो वो 1000 ही रहेगा। 1000 आंसर इट इज डिराइव्ड। क्या है कि कभी भी NP0 जो होगा 1 होगा। 1 लाख लू तो 1 ही होगा, इट विल नॉट चेंज। अंडरस्टैंडिंग? इट इज सिंपल, NP0 विल ऑलवेज बी। इज इट क्लियर? याद रखना क्योंकि आगे सम्स में हम लोग को काम आएगा ये सारी चीज, ठीक है? तो NP0 will always be 1. Now they are telling that NPN is equals to n factorial. NPN माने अगर आपका जो n है और आपका जो r है both are same. If n and r both are same, the answer will be n factorial. अगर मैं बोलूं phi p phi तो ये लोग बोल रहे हैं उसका आंसर क्या आएगा 5 factorial, पर हम तो मानेंगे नहीं। We'll check first, right? What you have to do? 5 factorial divided by 5 minus 5 factorial. 5 minus 5 is what? 0. तो 5 factorial divided by 0 factorial is this what? 5 factorial. ये तो हमारा n था, तो सही मिला। बड़ा नंबर ट्राई करना है? Yes, sir. क्या ट्राई करना पता है? 1 लाख। और रे चलो 1 lakh, okay? Devansh wants to try 1 lakh. So 1 lakh P here also 1 lakh. So what will be there? 1 lakh factorial divided by 1 lakh minus 1 lakh, that will be 0, that is n factorial. n 1 lakh तो हमारा n था ना? Yes, sir. समझ में आ रहा है? सबसे पहले what did we learn? NP0, NP0, NPN, सिर्फ n नहीं, n फैक्टोरियल, क्योंकि फैक्टोरियल माने पीछे जाना पड़ेगा, तो यू डोंट हैव टू मिस इट, राइट? NP0, NPN, वेरी गुड। नाउ NP1, NP1 will be n. Let's try. NP1 अगर मैं ट्राई करूं 7P1, 7P1 को सॉल्व कैसे करेंगे? 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 1 फैक्टोरियल, दैट इज 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, दैट इज 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और नीचे तो 6 फैक्टोरियल है ही, दोनों कट गया। आंसर क्या बचा? 7 फैक्टोरियल नहीं, सिर्फ 7। NP1 विल बी सिर्फ n, फैक्टोरियल नहीं। कोई भी नंबर अगर दिया हो, n कुछ भी दिया हो, लेकिन r के जगह पे अगर 1 होगा तो आंसर हमारा आएगा n, ओनली n। तीनों की तीनों चीज, NP0, NPN, NP1, अंडरस्टैंडिंग? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, वेरी गुड। NPN minus 1, NPN minus 1 माने n minus 1 माने क्या? n से एक छोटा नंबर होगा। माइनस 1 माने क्या? 5 में से माइनस 1 करे तो 4, 7 में से माइनस 1 करे तो 6, माने जो भी n होगा तो r उसका एक नंबर छोटा होगा, है ना? यस। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 9 तो मेरा r जो होगा वो 8 होगा, एक नंबर छोटा, और उसका आंसर क्या आएगा? n फैक्टोरियल आएगा। वी हैव टू चेक आएगा कि नहीं। क्या करेंगे पहले? 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 8 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल, 9 माइनस 8 माने क्या? 1 फैक्टोरियल। बचा क्या? 9 factorial. वो क्या है? n है ना, 9 हमारा n था। Yes, sir. समझ में आ रहा है? अगर n माइनस 1, r माने क्या? एक नंबर छोटा है r। अगर मेरा जो n है वो 7 है तो r क्या होगा? 5000 है तो r क्या होगा? 4000. इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर वो एक नंबर छोटा होगा तो आंसर हमारा आएगा, तो हमारा आंसर आएगा n फैक्टोरियल। इज इट क्लियर? 4 डिराइव्ड हमने पढ़े। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? NP0, NP0 will be NPN, then we have learned NP1 and NPN minus 1,
Is it clear to everyone? These are already derived, so you can easily understand how whenever in the sum this may come, you can easily say कि NP0 क्या आ रहा है, NPN क्या आ रहा है, NPN minus 1 क्या आ रहा है. You can easily solve it. Is it clear to everyone? Yes. So now you already know how to solve this, right? If I give you any example, will you be able to solve it? Yes. First of all, the first thing what you have to write, NPN, NPR का formula लिख देना है. Formula is n factorial divided by n minus r factorial. Here it will be 8 factorial divided by 8 minus 3 factorial. That is 8 factorial divided by. 5 factorial. अब आपको 8 से पीछे कदम रखना है. कब तक? जब तक आपको 5 ना दिखे. ठीक है, तो 8 into 7 into 6 into 5 factorial divided by 5 factorial. This will be cut. 8 into 7 into 6. 336. Very good. Let's solve the next one. 60p2. बड़ा नंबर देख के घबराना नहीं है. कैसे करेंगे? 60 factorial divided by 60 minus 2 factorial, that is 60 factorial divided by 50 factorial. 60 into 59 into 58 factorial divided by 58 factorial. 58 cancel. 60 into 59. 354. चलो next 7p6. 7p6, 7 factorial divided by 7 minus 6 factorial. 7 factorial divided by, 1 factorial. that will be, 7 factorial. and 7 factorial का आंसर कैसे ढूंढेंगे? 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. करो जल्दी से. 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. क्या आ रहा है आंसर? 5p5. 5p5 माने क्या? NPN. हाँ ना, आंसर क्या आना चाहिए? 5 factorial, 5 minus 5 factorial, that is 5 factorial, that is 5 into 4 into 3 into 2 into 1, and that is, 120. is it clear to everyone? Yes. Everyone will be able to solve the sums. ठीक है, NPR कैसे solve करना है सबको आ गया. Okay, very good. We'll continue in the next class. Thank you.